Hi folks, so in this video we'll be talking about critical angle and total internal reflection का concept. So इस टॉपिक के बाद हमारा फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड द टारगेट वुड बी दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वाया दिस वीडियो एंड यू ब्रिंग इन डाउट्स basically your books doubts, the questions that you're not able to solve, whatever. And even if you don't understand any of the concept that we'll be talking about in this video, you feel free to ask that in the class itself. ठीक है, so let's get started. The topic name is total internal reflection and critical angle. चलो समझते हैं बेटा सबसे पहले तो जब भी हम critical angle की बात करेंगे तो we have to remember that the light must travel from a denser medium to a rarer medium. Okay, again a denser medium to a rarer medium. Let's talk about that. So let's say दिस इज अ डेंसर मीडियम एंड दिस इज अ रेयर मीडियम. ठीक है, जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. करेक्ट, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो लेट्स से वी सेंड द लाइट, वी ड्रू अ नॉर्मल के साथ वाला एंगल इज ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट. अब बेंडिंग, अब निकलनी सीधी चाहिए थी लेकिन ये क्या हो रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यस और नो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो इट विल बेंड समवेयर लाइक दिस, right, somewhere like this, bending away from the normal. Correct, by making this as the angle of refraction. by normal के साथ ही तो बनते हैं ना angle of reflection, so angle of refraction, I'm sorry, angle of refraction. So this is the angle of refraction. ठीक है जी. अब मान के चलो हम इस angle of incidence को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाते हैं. next case में let's just increase the angle of incidence. ठीक है, so again this is the normal. I increase the angle of incidence to somewhere like this. It is again traveling from denser to rarer medium, so it will again bend away from the normal. Correct, तो कुछ इस तरीके से bend हो जाएगी by forming this angle of refraction. Yes or no? So the point here is that मैं जितनी भी angle of incidence की वैल्यू बढ़ाते चले जाऊंगा, मेरी angle of refraction की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी. Correct, now I want to talk about that angle of incidence जहां पे कि ये थर्ड केस निकल के आए, जहां पे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस भेजा आए, एंड ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री विद द नॉर्मल. दैट मींस लाइट इस तरीके से पास हो जाए बाय मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द नॉर्मल. दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस केस, and during this case this angle of incidence will be called as critical angle, and the angle of refraction will be equal to 90 degree. So critical angle will be that angle of incidence during which the angle of refraction becomes equal to 90 degree. So this is the plain simple concept of critical angle. ध्यान क्या रखना, that the light will only be traveling from a denser to rarer medium, and for some angle of incidence the value of refracted angle comes out to be 90 degree, right. So उस angle को हम लोग क्या बोलेंगे, critical angle, as in this case we can see, right. I hope this should be clear. It is not that difficult. The concept now comes is that of total internal refraction. ओके, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहां तक की रिफ्रैक्शन की बात हो रही थी, अब हम लोग बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो कि कब होता है अभी हम समझते हैं. ठीक है, अगेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम. ठीक है, एंड दिस टाइम वी आर मेकिंग श्योर, एक्सक्यूज मी, दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट फ्रॉम विच वी आर सेंडिंग द लाइट टू द डेंसर टू रेयर मीडियम, दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल. So I'm sorry, that is greater than critical angle. Okay, let's talk about that. So let's say now I am sending angle of incidence to be greater than critical angle. ठीक है, तो let's say ये critical angle था C, अब मैंने इससे भी ज्यादा बड़ी वैल्यू भेज दी, something like this, angle of incidence. Here angle of incidence is greater than equal to C. Here C represents critical angle. Now what will happen is instead of refraction, or basically instead of light traveling to the rarer medium, it will reflect back to the medium itself, to this denser medium itself. It will reflect back. So let's say this is the incident ray, in this case IR. It will reflect back with a reflected ray IR by following the laws of reflection, which says that the angle of incidence will always be equal to angle of reflection. Here this R is angle
of reflection, not refraction, reflection. And this concept wherein the light is incident on a rarer medium, however it does not go to that rarer medium, it reflects internally, in which case when the angle of incidence is greater than critical angle, such scenario is called as the total internal reflection concept. Again, we'll again talk about that. Whenever the incident angle or the angle of incidence is greater than critical angle, when the light is trying to travel from a denser medium to a rarer medium, during that case light will not refract, instead it will reflect back in the same medium with angle of incidence equal to same as angle of reflection. Condition again, angle of incidence greater than critical angle. What is critical angle? That angle on which that angle of incidence wherein the angle of refraction will become equal to 90 degree. जैसे ही I उससे बड़ा होगा, total internal reflection देखने को मिलेगी. This is the TIR concept. TIR बोले तो total internal reflection. Okay, let's move forward. Okay. Now we'll talk about a formula that actually kind of corresponds the critical angle with that of the refractive index of the medium. Okay, let's talk about that. Okay, so the relationship is sine of critical angle. So sine C, sine of critical angle is equal to 1 upon refractive index mu, ठीक है, refractive index of denser medium with respect to rarer medium. denser medium with respect to rarer medium. अब ये मैंने तुम्हारे बुक की तरह लिखा भाई, ठीक है, जो हम लोग 1-2 लिख रहे थे ना, वो भी लिख सकते हो. आइदर यू कैन टॉक अबाउट, यू कैन टेक द बुक रेफरेंस आल्सो. सो बुक में तुम्हारे ऐसे लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम. डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, दैट मींस अगर हम इसको ब्रेक करना चाहे तो इट विल बी म्यू डेंसर अपॉन में म्यू रेयर. अगर इस चीज को तुमने इस तरीके से लिखना है तो दैट्स द सेपरेट थिंग. ओके, सो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर. डेंसर विद रिस्पेक्ट, जो यहां लिखा है वो उसके रिस्पेक्ट विद द रेयर मीडियम. फाइन. अब एक इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी बेटा, उस पर ध्यान देना. ठीक है, सो लेट्स से पहले एक एग्जांपल की बात करते हैं जहां पे जो लाइट है वो ग्लास से एयर में जा रही है. ग्लास इज अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज अ रेयर मीडियम. ठीक है, सो व्हाट वुड बी दिस वैल्यू ऑफ म्यू? इट विल बी म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. यस और नो? बिकॉज ग्लास से एयर के अंदर जा रही है, डेंसर से रेयर, आई मीन डेंसर एंड रेयर एज पर दिस रिलेशन. सो दिस म्यू विल बी इक्वल टू ग्लास अपॉन एयर. ग्लास इज द डेंसर, एयर इज द रेयर मीडियम. बेटा ये जो वैल्यू आती है ना NGA, दिस इज समवेयर इक्वल टू 1.5. दिस इज इक्वल टू 1.5. ये चीज ना, ये थोड़ी सी ये याद रखने वाली है. ग्लास और वाटर के बारे में हम लोग बात करेंगे, याद भी रखने हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज इक्वल टू 1.5. ठीक है, सो लेट अस पुट दिस वैल्यू हियर. सो दिस विल बिकम sin C इक्वल टू 1 अपॉन में, directly put this value 1.5. so C will be equal to what? Sin inverse 1 upon में 1.5. right? ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी इस बारे में डिस्कशन किया था. साइन इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए वी नीड साइंटिफिक कैलकुलेटर, अदरवाइज वैल्यू विल बी गिवन टू अस. राइट? सो व्हाट दिस वैल्यू कम्स अप? सो वैल्यू ऑफ C, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, ये याद रखना बेटा, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास. सो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास कम्स आउट टू बी इक्वल टू समवेयर अराउंड 42 डिग्री, somewhere around 42 डिग्री. ओके, ये याद रखना. व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास? इट इज अराउंड 42 डिग्री. ठीक है, ऐसे ही वाटर की बात करते हैं बेटा. सी ग्लास आ रहा है 42 डिग्री, इसको सेपरेटली मैं लिख देता हूं यहां पे. ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया सी ग्लास, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री. ठीक है, अब वाटर की बात करते हैं. लेट्स से नाउ लाइट इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर.
ठीक है, वाटर इज अ डेंसर मीडियम, एयर इज अ रेयर मीडियम. सो व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ साइन सी? साइन सी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू वाटर with respect to air, basically the absolute refractive index of water. Yes or no? Absolute refractive index of water क्या है बेटा? So this value comes out to be equal to somewhere around 1.33. ये भी याद रखने बेटा. Sin C is equals to 1 upon में 1.33. So C will be equal to sin inverse 1 upon में 1.33, which is equal to 49 डिग्री या 50 डिग्री भी ले सकते हो, around 49 to 50 degree. ठीक है, so the critical angle of water becomes equal to 50 degree. ऊपर क्या था? सी ग्लास 42 डिग्री, नीचे क्या? सी वाटर 50 डिग्री. अब यार जरा सोच के देखो, वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां हम देख ही रहे, इट इज लेसर इन कंपैरिजन टू ग्लास. ग्लास की वाज 1.5, वाटर की इज 1.33. ठीक है, इस चीज से हमें एक और बात पता चलती है बेटा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, विच इज that greater the refractive index, greater, जितना ज्यादा डेंस होगा मटेरियल, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी कम आएगी. लेसर द क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेसर द क्रिटिकल एंगल. ये याद रखना है बेटा हमको, जितना ज्यादा मटेरियल डेंस होगा उतना क्रिटिकल एंगल की वैल्यू थोड़ी कम आएगी. ओके, अब एक जरा डायमंड का केस भी देख लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है. ठीक है, सो क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड अगर निकालना है तो साइन सी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट, एंड दिस इज समवेयर अराउंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमाउंट टू बी 2.4, वेरी वेरी डेंस. 2.4 वेरी वेरी डेंस. सो 2.4 के करीब होता है. तो सी की वैल्यू क्या आती है? साइन इनवर्स 1 अपॉन में 2.4. दिस वैल्यू कम्स टू बी इक्वल टू इट्स इक्वल टू 25 डिग्री. This is C diamond. So see, डायमंड, एयर और ग्लास दोनों से ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा है. तो देखो दोनों से उसका क्रिटिकल एंगल कितना कम है, 25 डिग्री. वेयर इन फॉर ग्लास इट वाज कमिंग आउट टू बी नियर अबाउट 43 डिग्रीज एंड फॉर वाटर इट वाज नियरली 50 डिग्रीज, राइट. सो द ग्रेटर द refractive index, basically more the dense the material is, the lesser would be the critical angle value. Hope that makes sense, right? Now let's just talk about several factors on which refractive index, the value of critical angle depends. Again, factors affecting critical angle value. Okay, so factors क्या है बेटा? जो factors affecting critical angles. ठीक है, तो बेटा पहला फैक्टर जो अभी तक हम बात कर रहे हैं, दैट वाज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, so the greater the refractive index, the smaller will be the value of critical angle. ये याद रखना है, greater the refractive index, smaller the value of critical angle. Next is बेटा टेम्परेचर. बेटा टेम्परेचर बढ़ता है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ती है. ऐसा क्यों बेटा? मैं तो बता दूं क्यों. सी, जब टेम्परेचर बढ़ता है बेटा किसी भी मटेरियल का, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर भागते हैं, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पहले जो टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स थे वो थोड़ा लूजली पैक्ड हो गए, तो मटेरियल क्या हो गया? थोड़ा सा रेयर हो गया. रेयर होने का क्या मतलब हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया पहले से, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो क्या होता है? क्रिटिकल एंगल बढ़ जाता है ना भाई. तो इधर क्या रिलेशन बना? टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिक्रीज के साथ क्रिटिकल एंगल इंक्रीज. सो if the temperature rises, then critical angle value will also rise. Make sense? Third one is wavelength. लैम्डा. पिछली क्लास में हमने वेवलेंथ के बारे में भी डिस्कस किया था, राइट. सो वेवलेंथ की वैल्यू बेटा अगर बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी. ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, नोट्स देख लेना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो वी कैन डिस्कस लेटर ऑन एज वेल. बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से वेवलेंथ के बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से क्या होगा? क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा भाई. यस और नो? नहीं, यहां पे गड़बड़ हुई है भाई, यहां पे गड़बड़ है. दोबारा से ध्यान दो. वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है बेटा. आई एम सॉरी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. ये याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो क्या होगा? क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी बेटा? इट विल राइज. सो द ग्रेटर द वेवलेंथ, द ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल. वेवलेंथ बड़े होने का क्या मतलब हो बेटा?
बात की थी ना, रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है तभी वो दूर तक ट्रैवल करता है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है तभी वो बहुत जल्दी स्कैटर हो जाता है. यस और नो? सो दैट मीन्स सिंस लैम्डा रेड लाइट इज द ग्रेटेस्ट, critical angle will also be greater for red light, whereas for violet, since the lambda value is quite low, critical angle value will also be quite low. ओके, सो वायलेट के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम, रेड के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे ज्यादा. विब ग्योर के हिसाब से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि किसकी क्रिटिकल एंगल वैल्यू ज्यादा आएगी, किसकी कम आएगी, व्हाटसोएवर. बिकॉज विब ग्योर जो है वो वेवलेंथ के ही टर्म्स में जो है बंधा हुआ है. वायलेट लाइट इज लेसर, रेड लाइट इज द मोस्ट. तो रेड लाइट का क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा, वायलेट लाइट का क्रिटिकल एंगल सबसे कम. राइट बेटा, एक और चीज है जो तुमको थोड़ा ध्यान रखनी है, वो पहले डिस्कस करनी चाहिए थी लेकिन मिस हो गई. सो जब हमने वो केस डिस्कस किया था ना, जब एंगल ऑफ आई क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाता है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाता है. बेटा इस कंडीशन को हम पता है क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं. ग्रेजिंग इमर्जेंस. ग्रेजिंग इमर्जेंस बोले तो जो लाइट है वो सरफेस के साथ साथ ही बाहर इमर्ज होगी. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेजिंग इमर्जेंस. पेपर में आ सकता है. क्रिटिकल एंगल जब होता है तो लाइट की इमर्जेंस कैसी होती है? ग्रेजिंग इमर्जेंस. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? 90 डिग्री. यू हैव टू रिमेंबर दैट. ओके बेटा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमारी हो गई है. कॉन्सेप्ट में इतना ही जानना था हमको. अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की. कुछ न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट है टीआईआर के, जो समझ नहीं आते हैं. बेसिकली इट इज द प्रिज्म रिलेटेड न्यूमेरिकल्स. So let's talk about one such numerical. Okay, so let's say we are given with a prism wherein one of the angle is 90 degree, two angles is 45 degree. तो ये prism कैसा हो गया बेटा? This prism is isosceles. This triangle is isosceles triangle, right? And this prism is of that construction. इस तरीके का स्पेसिफिक अगर prism दे रखा हो तो बेटा याद रखना है, ऐसे prism को हम क्या बोलते हैं बेटा? We call it as total. इसको हम total इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोलते हैं. टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ऐसी कंस्ट्रक्शन वाले प्रिज्म को. अब ऐसा बोलते क्यों है वो अभी हमें समझ में आ जाएगा 2 मिनट में. ठीक है, सो लेट्स से जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस सो लेट्स से हमने जो लाइट भेजी वो हमने कुछ इस तरीके से भेजी बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए. ठीक है, ये हमारी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तुमको याद होगा बेटा, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 90 डिग्री होता है, बेसिकली नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बना के अगर चलता है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती. यस और नो? तो दैट मींस ये लाइट क्या होगी? सीधी सीधी एंटर कर जाएगी ना भाई. यहां तक तो सीधी सीधी एंटर कर जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं. पिछली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे. यहां पे चमत्कार होगा. कैसे? सबसे पहले तो भाई नॉर्मल बनाओ, कुछ ऐसी टेढ़ी सी नॉर्मल बनेगी ना भाई, इस तरीके से. राइट, ये 90 डिग्री है, ये 45 है. ये वाला एंगल कितना हो गया भाई? 45 डिग्री. करेक्ट. अब तुम याद करो, जब हम लोग ग्लास का C की वैल्यू निकाल रहे थे, इट केम आउट टू बी समवेयर ऑन 42 डिग्री, 43 डिग्री. राइट, 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री. दैट मींस क्रिटिकल एंगल से बड़ी वैल्यू हो गई भाई. अब क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन नहीं होगा. क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. कैसे? ये वाला एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा बेटा. यस और नो? रिफ्लेक्शन किस तरीके से बनेगी? एक सेकेंड बेटा, सॉरी बेटा, कॉल आ गया था. ओके, सो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना बेटा? 90 डिग्री के साथ. दिस कम्स आउट टू बी 45 डिग्री. वाई? बिकॉज दिस इज 90. ये 45 तो ये भी 45 बनेगा. ये 45 बना. अब क्या होगा? लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया था, बिकॉज 45 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास. लाइट क्या होगी बेटा? बेंड करेगी. कैसे? मेकिंग अ 45 डिग्री एंगल अगेन. राइट, एंड सीधी सीधी गिरेगी. अगेन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा. और जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो बेटा लाइट क्या करती है? रिफ्रैक्ट करती है. रिफ्रैक्ट क्या करती है? कुछ नहीं करती भाई, अनडिविएटेड पास हो जाती है. तो यहां से क्या होगी? अनडिविएटेड पास हो जाएगी. राइट, अब हुआ क्या? ये क्या बनी मेरी? रिफ्लेक्टेड रे, और ये बनी रिफ्रैक्टेड रे, अनडिविएटेड. रिफ्रैक्टेड रे. हुआ क्या बेटा? लाइट आई, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ने उसे 90 डिग्री घुमा दिया. लाइट निकलनी चाहिए थी सीधी, बनी गई का यहां पे. तो दैट मींस इस लाइट की इमेज कहां बनेगी? कहीं यहां पे.
आई यहाँ बनी यहाँ इमेज, कितना कितना यूनिक और कितना स्पेशल केस है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर केस। इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो बेटा, ठीक है बेटा। प्रिज्म फिर से वही ले लिया हमने जो पिछले केस में लिया था, लेकिन इस बार जिस तरीके से हम लाइट भेज रहे हैं वो हमने चेंज कर दी। चेंज भी क्या कर दी हमने, फेस चेंज कर दिया जिसके थ्रू लाइट एंटर हो रही है, ठीक है। नाउ लाइट इज एंटरिंग थ्रू दिस साइड ऑफ द प्रिज्म, अगेन कैसे, मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस, ठीक है। नाउ दिस इज द एयर एंड दिस इज ग्लास विच इज इनसाइड, फाइन। 90 डिग्री से अगर लाइट आएगी बेटा तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अगेन 90 इज अगेन फॉर्मिंग 0 डिग्री विद द नॉर्मल, करेक्ट। तो होगा क्या, अनडिविएटेड पास करेगी बेटा, करेगी अनडिविएटेड पास, यहां तक चली गई, यस और नो। यहां पे भी क्या एंगल बन रहा है बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस वन इज 90 डिग्री, so दिस इज 45 डिग्री, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो दैट मींस यहाँ पे लाइट सीधी पहुंच गई, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस बिकम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस फेस, करेक्ट, ओके। अब क्या होगी, लाइट दोबारा से देखो 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज व्हाट, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज व्हाट, 42 डिग्री व्हाटएवर, राइट। तो होगा क्या बेटा, रिफ्रैक्शन नहीं होगी, क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। कैसे, बाय मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस और नो, ठीक है जी। यहां पे फिर से एक नॉर्मल बना देते बेटा, ये बन गया नॉर्मल, राइट। ये नॉर्मल बना तो ये वाला एंगल 45 डिग्री, करेक्ट। तो ये वाला एंगल भी बेटा 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अब ये वाला एंगल 45 डिग्री, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बेटा कुछ इस तरीके से, ये 90 है 45, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। अगेन दिस वन बिकम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस फेस, यस और नो। 45 डिग्री है तो क्या होगा, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कितने एंगल से, बैक 45 डिग्री, यस और नो। 45 डिग्री से फिर बन गया, और यहां पे क्या हुआ, अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा यहां पे इस फेस पे, और जब भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो क्या होता है, लाइट गोज अनडिविएटेड, तो लाइट एस्केप कर जाएगी कुछ इस तरीके से, आई ऐसे गई, देखो कैसे, दिस इज द इमर्जेंट रे। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल एज क्रिटिकल एंगल। दिस इज अ वेरी स्मॉल वीडियो, आधे घंटे की भी नहीं है, देख के समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल यू विल बी एबल टू डू विद योर बुक्स, राइट। जो बुक के न्यूमेरिकल है वो ट्राई आउट करने आपको घर पे, एंड यू हैव टू कम बैक विद योर डाउट्स, ठीक है। आई नो you know this chapter, I mean this whole chapter is a little tricky, but then I hope that you are having good understanding by now. एक लास्ट न्यूमेरिकल बेटा और देख लेते हैं, उसके बाद विल रैप अप। यू हैव टू ट्राई क्वेश्चंस एट होम, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रिज्म के एंगल्स है वो थोड़े डिफरेंट लेते हैं, वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म नहीं लेंगे, एंगल्स हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एंगल किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, सो इस बारी हम लोग ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, and this angle is again 90 degree, okay जी, fine, ठीक है। now again we are in making the light incident with 90 degree और from this phase 90 degree पे light है incident ray, तो क्या होगा भाई, लाइट अनडिविएटेड पास हो जाएगी, अनडिविएटेड पास होके यहाँ तक जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे जब हम लोग बनाएंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल कितना बनेगा बेटा, 45 डिग्री, करेक्ट। 45 डिग्री बना तो क्या हुआ, 45 डिग्री है तो दैट मीन्स, ओ वेट 45 क्यों बनेगा, नहीं 45 नहीं बनेगा, ये 90 है, 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बेटा, 30 डिग्री, राइट। दिस एंगल विल बिकम 30 डिग्रीज, 30 डिग्री है, दिस एंगल इज लोअर देन द क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से अगर जो है एंगल कम होता है इंसिडेंस, तो क्या होता है बेटा, तब तो रिफ्रैक्शन होगी ना भाई, रिफ्रैक्शन होगी, और लाइट कैसे पास कर जाएगी बेटा, ये नॉर्मल है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज रेयर से डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो कुछ इस तरीके से इट विल इमर्ज आउट, दिस इज द इमर्जेंट रे। यहां का एंगल बताना जरूरी नहीं है, वाई, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट्स द एक्चुअल एंगल, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला हियर। यहां पे लॉजिक क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज लेस देन क्रिटिकल एंगल, लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू, ओके, बाय गाइस, सी यू।